हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 4 ऑफ द पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़। एंड ये सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से। नो, अगर आपने लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ लिया है देन यू शुड वॉच दिस सीरीज़ एज इट विल help you to revise the most important things in the chapter as well as for effective revision. Now let us start. सबसे पहले before starting the MCQs that I have made here, let me show you, let us first read the preamble once. इसके एक बार देख लेते हैं क्रोनोलॉजी कैसे समझाया गया है एंड देन वी विल प्रोसीड टू द MCQs. Now see the Constitution of India preamble. The preamble starts from we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका ऑर्डर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। वेयर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे एज आई हैव मेंशनड इट हेयर. ओके, नाउ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ जस्टिस कितने टाइप की मेंशन है प्रीएम्बल में? 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. नेक्स्ट इज liberty of thought, expression, belief, faith and worship. 5 types of liberties are mentioned. Equality of status and opportunity, and fraternity to promote them among them. Fraternity जो mentioned है, the fraternity, the idea of fraternity was taken from the French Revolution, ठीक है. and this preamble was adopted on November 1949. तो एग्जैक्ट डेट हमारी 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल जो है वो अडॉप्ट हुआ था. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल? सबसे पहले द सोर्स ऑफ पावर क्या है प्रीएम्बल का? तो द प्रीएम्बल डिराइव्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज डेट ऑफ अडॉप्शन वॉज 26 नवंबर 1949. सो इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस you can join the Telegram channel. The PDF will be uploaded there only. Now in the Keshwanandan Bharti case of 1973, preamble was declared as a part of constitution, and later in the LIC case also the preamble was declared as a part of constitution. Now preamble is neither a source of power to the legislature not a prohibition upon the powers of the legislature. Also the preamble is non-justiciable in nature. It means any of the provision that is mentioned in the preamble you cannot go to the court and ask for their enforceability. Okay, so it is not enforceable in the court of law. Next important point is that the preamble can be amended, and it has been amended once when in the 42nd Amendment Act of 1976 3 words were added, that is socialist, secular and integrity. Now let us start with the MCQs now. Now the following are enshrined in the preamble of the Constitution: status of equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, justice, social, economic and political, fraternity, assuring the dignity of individual, and unity and integrity of the nation. Now we have to mention here the chronology, and that is why I read the preamble in front of you, ताकि आपको पता चल जाए. एंड सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला था? हमें जस्टिस देखने को मिला था. जस्टिस के बाद क्या मेंशन था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. देन हमारा था स्टेटस ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फिर फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. द करेक्ट ऑर्डर वुड बी 3, 2, 1, 4, एंड उसके बाद ये लास्ट में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी था. सो द करेक्ट आंसर इज 3, 2, 1, 4, 5. देखो, अगर पांचों का ऑर्डर नहीं भी याद रखना है तो यू कैन जस्ट रिमेंबर जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेंशन. जस्टिस के बाद लिबर्टी ऑफ 5 चीज़ों की लिबर्टी मिली थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड देन देयर वाज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन का बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज the philosophical postulates of the Constitution of India are based on. So when I was टीचिंग यू चैप्टर 1, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था अबाउट द
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की दोनों चीज़ें बताई थी मैंने कि दिसंबर 12 1946 को दिस वाज प्रेजेंटेड एंड जनवरी 22 1947 में द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड यूनानिमसली। ओके, so this objective resolution were presented by Jawaharlal Nehru, and these were the fundamentals on which the preamble of the constitution is based. So the philosophical postulates of the constitution of India are based on the objective resolution of the Pandit Nehru 1947. Now next question is, what is the status of preamble? It is not a part of the constitution. Wrong, absolutely wrong. Why? क्योंकि केशवानंदन भारती केस में of 1973 the preamble was declared as a part of constitution. However, जो earlier केस था गोलकनाथ केस of 1960, इन केसेस में preamble को पार्ट नहीं माना जाता था, but later in the Keshwanandan Bharti case, it was propounded that the preamble is the intrinsic part of constitution, and it was later found in the LIC case also. Second is, it is a part of constitution but neither confers any power nor imposes any duties, nor it can be of any use in the interpreting of the provisions of the constitution. It is absolutely wrong. इट इज़ अ पार्ट, ये तो सही है, बट ये कन्फर भी नहीं करता है पावर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट कैन बी यूज्ड in interpreting the other provisions of the constitution, and that is the reason why this statement is wrong. Third statement क्या हमारा, a part of the constitution and can be used in interpreting other provisions of the constitution in the case of ambiguity. Yes, C यहाँ पे हमारा is the correct statement here. Now next question, let's see which of the following statement is correct. The preamble to the Indian Constitution declares the resolve of people of India to secure to all its citizens freedom of residence anywhere in the country. Absolutely wrong statement. Freedom of residence किस में है, तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में मैंशनड है ये, राइट टू रेसिडेंस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, नो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये मैंशनड है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, yes, this is correct. 5 types of liberty as I have told you are mentioned. Liberty of thought, faith, worship, ठीक है, तो ये हमारा सी सही है। एंड राइट टू एडुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस article to the primary education is article 21A of the constitution, of which right to education was enacted. Okay, and this article 21A के बाद article 45 of the directive principle of state policy was also amended and provision was added. Okay na, so 4 का C is the right answer. Now next is the term economic justice in the preamble of the constitution is a resolution for equal distribution of wealth, economy in administration of justice, socio-economic revolution, and chief justice to the poor. So justice we know in the preamble is mentioned of three types of justice are mentioned. सबसे पहले तो political, then there comes social, and then economic justice की बात की गई है. सो व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इट कैन बी अफर्म्ड फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39 में द प्रोविजन इज मेंशन्ड जिसमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट इज़ वाई हमारा ये यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। Now what is meant by republic? These are the terms. List 1 में सारे terms mentioned हैं जो कि preamble में हैं and उनकी implication क्या है। C. Republic, secular, democratic, sovereign. अभी सबसे पहले रिपब्लिक क्या, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इन केस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, ही इज़ इलेक्टेड, ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि द स्टेट डज नॉट हैव
रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। ये मैं बेसिक मीनिंग आपको बता रहा हूँ, रेस्ट आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। ओके, सेक्युलर का मतलब होता है कि द स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड इट डज नॉट स्पेसिफिकली फेवर्स एनी रिलीजन। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है हमारा? डेमोक्रेटिक होता है कि पीपल फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन तो हम सबको पता होगी। सोवरेन का क्या मतलब होता है? सोवरेन मीन्स द कंट्री और द गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक डिसीजंस, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग अबव द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू टेक एनी ऑफ द डिसीजंस। ओके, नाउ इस हिसाब से लेट अस मैच क्वेश्चन नंबर 6 का रिपब्लिक मीन्स क्या? द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ए का 1 होगा हमारा। देन व्हाट कम्स इज सेक्युलर का क्या मतलब है? द स्टेट डज नॉट हैज रिलीजन ऑफ इट्स ओन। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होगा हमारा? द गवर्नमेंट गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। I already told you the government is to the people, for the people and by the people. एंड सोवरेन का क्या मतलब है? द स्टेट इज़ फ्री टू कंडक्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई भी आउटर प्रेशर नहीं होता है। ओके, सो 4 का हमारा जो है 4 नहीं 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। Now let us see 7th, that is the text of preamble to the Constitution of India aims to secure fundamental rights to all its individual. No, the fundamental rights are given from Article 12 to 35. Fundamental duties, not at all. Fundamental duties are mentioned in Part 4A of the Constitution, Article 51A. Dignity to the individual and unity and integrity of nation, yes, this is mentioned in the preamble. 4th is द सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट सर्विस, ये तो बिल्कुल भी नहीं मैंशनड है। 7 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर इन कॉन्क्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी देखो, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ट्रिनिटी किनको बोला था? ठीक है, ट्रिनिटी बोला था लिबर्टी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन नहीं था, दैट इज़ वाई बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा है हमसे यहाँ पे, नॉट इंक्लूडेड, सो फ्लेक्सिबिलिटी वॉज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेयर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाई, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द थर्ड टर्म दैट वॉज इंटेग्रिटी, दिस वॉज इंसर्टेड इन द पार्लियामेंट बाई द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976। 44th अमेंडमेंट हमारा 1978 में आया था। ऑल्सो 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो सी हमारा 9 का सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, तो जैसे ही प्रीएम्बल मैंने बताया था SSDR याद रखना, मतलब क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। SSDR यहाँ पे आपका फॉलो हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। सारी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे प्रीएम्बल आपने पढ़ा, प्रीएम्बल से आपके दिमाग में बस SSDR दिमाग में है, तो यहाँ पे देखो आप मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ सॉल्व कर लोगे। अभी देखो SDSSR गलत है, SSDS ये भी गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SSDR है, तो कन्फ्यूजन अगर होगा भी आपको तो आप 50-50 पे तो एटलीस्ट पहुँच ही जाओगे, और ये तब पहुँचोगे जब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा सेट किया जाएगा, ठीक है, वरना तो आपको पता होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, indicates the objective to be achieved,
देखते हैं। कैनॉट बी अमेंडेड, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। इट कैन बी अमेंडेड एंड इट ऑल्सो हैव बीन अमेंडेड। कब अमेंड हुआ है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या क्या क्यों क्या अमेंडमेंट हुआ है? 3 वर्ड्स वेयर एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। मैं आपका रिवीजन ही इतना करवा दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, बट in case of ambiguity its provision can be used to find some reference to the case, ठीक है। क्या है? it indicates the objective to be achieved and it find its source from the objective resolution। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वेयर द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा के स्ट्रेट क्वेश्चन बनाया। तो इन एनी केस मैंने सारे तरीके के वेरिएशंस आपको बता दिए। 11 का बी हमारा करेक्ट होगा। इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।